concept करने से पहले we will discuss certain basic concepts of chemistry. और बेसिक कंसेप्ट्स में सबसे पहले वी हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स. Significant figures are the total number of digits in a number including the doubtful digit. फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेट कर रहे हो किसी सब्सटेंस का वेइंग मशीन में और वेट आ रहा है 2.234 ग्राम्स, लेकिन जब आप वेट करेंगे तो कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर्स भी हो सकती हैं और कुछ ह्यूमन एरर्स भी हो सकती हैं, और उसको डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंड लेट द एक्यूरेसी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज प्लस माइनस 0.001. So actual answer will be equal to 2.235 or it can be 2.236. So in this number we have 1, 2, 3, these are certain digits, and this last digit is the doubtful digit. So the total number of digits in this number including the doubtful digit, these are the 4 significant figures in this number. So significant figures are nothing but they are the total number of digits in a number including the last one doubtful digit. There are certain rules to find out the significant figures, and first rule says that all the non-zero digits are significant. All the non-zero digits are significant. For example, in case of 1, 2, 3, 1, there will be 4 significant figures in this number because all the digits are non-zero. Second rule is that all the zeros coming in beginning of the number, all the zeros in the beginning are not significant. They are not significant. For example, in the number 0.0023, all 3 zeros which are in the beginning of this number will not be significant. So this number contains only 2 significant figures, 2 significant digits. Third rule is that all the zeros coming in between the non-zero digits, all the zeros coming in between the non-zero digits are significant. For example, the number 1002. In this number 1 and 2, these are significant, and the zeros which are coming in between these non-zero digits, these zeros will also be significant. Fourth rule says that all the zeros which are towards the right of the number but are appearing after the decimal point are significant. For example, in case of 23.00, so this rule says कि जो भी zeros right में आ रही हैं लेकिन decimal point के बाद आ रही हैं, they are significant. So 23.00, in this number, these zeros, ये वाले zeros, they will be considered as significant zeros. So this number 23.00 will contain 1, 2, 3, 4 significant figures. Next rule says that all the zeros which are towards the right of the number but are not after the decimal point can be significant and can also be non-significant. For example, in the number
2300, ये जो zeros right में आ रही हैं, they are not after the decimal point, so they can be significant and they can also be non-significant. ये depend करता है कि आप इस number को कैसे denote करते हो. For example, अगर 2300 को आप लिखते हो 2.3 into 10 raised to power 3, अगर ऐसे डिनोट करते हैं इसको तो 2.3, these two significant figures will be there in this number. If this is denoted in the form 2.30 into 10 raised to power 3, तो इसमें 1, 2, 3, 3 significant digits will be there. अगर आप इसको डिनोट करते हो 2.300 into 10 raised to power 3, तब इसमें 4 significant figures will be there. So this rule is quite vague in the sense that it says that कि जो right में zeros आ रही हैं लेकिन decimal point के बाद नहीं है, वो significant हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं. For example, अगर आप इसको 2300 को इस form में denote करते हो 2.3 into 10 raised to power 3, तो there will be only 2 significant figures. अगर आप 2300 को इस फॉर्म में लिखते हो 2.30 into 10 raised to power 3, तो इसमें 1, 2, 3, these 3 significant figures will be there. अगर आप इसको 2300 को इस सेंस में इस तरह से लिखते हो 2.300 into 10 raised to power 3, तो इसमें 1, 2, 3, 4 significant figures will be there. So these were the rules for determining the number of significant figures. एक बार फिर से recollect करते हैं हम इसको. First rule was कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे. सेकेंड रूल कहता है कि जितने भी जीरोज बिगनिंग में हैं किसी भी नंबर के, वो जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल 0.0023, इस नंबर में वी हैव जस्ट दीज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. जो जीरोस बिगनिंग में आ रहे हैं, these will not be significant. थर्ड रूल सेज कि जितने भी जीरोस बीच में आएंगे नॉन जीरो डिजिट्स के, they will be significant. फॉर एग्जाम्पल 1002, इस केस में ये वाले जीरोस जो हैं which are coming in between the non zero digits 1 and 2, they will be considered as significant zeros, significant digits. Next rule says, fourth rule, कि जितने भी जीरोस राइट में आ रहे हैं लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं, जैसे 23.00, ये वाले जीरोस जो होंगे दे विल बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स. सो 23.00 इट कंटेन्स 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. नेक्स्ट रूल इज कि जितने भी जीरोस राइट साइड में आ रहे हैं लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं है, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि 2300 को आप कैसे डिनोट करते हो. अगर 2300 को आप डिनोट करते हो 2.3 into 10 raised to power 3, then only 2 significant figures will be there. अगर आप इसको डिनोट करते हो 2.30 into 10 raised to power 3, then only 3 significant figures will be there. अगर आप इसको डिनोट करते हो 2.300 into 10 raised to power 3, then 1, 2, 3, 4 significant figures will be there. Next is, जब आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है तो आंसर कहां तक डिनोट करना है, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए. There is a rule for addition and subtraction. मान लीजिए आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, वो दो नंबर्स हैं 2.345 एंड 3.1, और जनरली हम आंसर ऐसे लिखते हैं कि आंसर विल बी 5, 4, 4 एंड 5, बट ये आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा. इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल है वो कहता है कि आपने जिन नंबर्स को आप एडअप कर रहे हो उन नंबर्स में देखना है कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने कितने डिजिट्स हैं दोनों नंबर्स में. फॉर एग्जांपल इसमें वी हैव 1, 2, 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, और इसमें ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल है वो कहता है कि जिस नंबर में लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, उतने ही डिजिट्स
आंसर में होने चाहिए आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. तो आंसर शुड बी रिपोर्टेड ओनली up to 4 in this case. Answer will be reported only up to 1 digit after the decimal place because जिन numbers को आप add up कर रहे हो उन numbers में 3.1 में we have only 1 digit after the decimal point. So addition and subtraction दोनों के लिए ये रूल है कि आंसर को आपने जहां तक रिपोर्ट करना है आपने उन नंबर्स को देखना है जिन नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कि लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स तक कौन सा डेसिमल पॉइंट के बाद लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स किस नंबर में है और उसी के अकॉर्डिंगली आपने आंसर रिपोर्ट करना है. जैसे दिस विल बी ओनली 5.4. अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, हैड इट बीन अगर सब्ट्रैक्शन में भी यही आंसर आ रहा होता हाइपोथेटिकली, तो सब्ट्रैक्शन में भी आपने यहीं तक इसको रिपोर्ट करना था 5.4. दिस इज द रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट इज द रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में ही मान लीजिए वी आर मल्टीप्लाइंग दिस 2.345 विद 2.1 और आंसर इज सपोज कमिंग आउट टू बी 5.123. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर. दिस इज आई एम सपोजिंग दैट सपोज आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है 5.123. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला रूल कहता है कि उन नंबर्स को आपने देखना है जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो और उन नंबर्स में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस नंबर में है वो देखना है आपने. जैसे ऊपर वाले में 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नीचे वाले में 1, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए बिकॉज आंसर जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उनसे ज्यादा प्रिसाइज, उनसे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता. तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों के लिए ये रूल है कि जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उन नंबर्स को आपने देखना है जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसमें है. जैसे इन दोनों में वी हैव 1 एंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स सेकंड वाले में, ऊपर वाले में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए. तो आंसर विल बी जस्ट 5.1. नेक्स्ट इज द रूल फॉर कंप्लेक्स कैलकुलेशंस. Rule for complex calculation. Complex calculations means ऐसी calculation जिसमें addition, multiplication, division सारा आ रहा हो और आपको board mass लगाना पड़े. BODMAS. This is bracket of division, multiplication, addition, subtraction. Complex calculations के cases में, for example, आंसर कहां तक रिपोर्ट करना है इसमें भी आपने उन नंबर्स को देखना है जिनको आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, एडिशन करवा रहे हो कि इनमें लीस्ट प्रिसाइज सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कौन सा नंबर है. तो इसमें 2 इज द नंबर विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. इसमें एक ही सिग्निफिकेंट है लेकिन कंप्लेक्स कैलकुलेशन वाला रूल कहता है कि आपने एग्जैक्ट नंबर को छोड़ के, एग्जैक्ट नंबर जैसे 2 इज द एग्जैक्ट नंबर, इसको छोड़ के आपने और नंबर्स देखने हैं जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उसको चूज करना है सबसे पहले. इसमें देखिए 2.1 एंड 3.1 ये ऐसे नंबर्स हैं जिसमें ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर. सो जो भी आंसर होगा, फॉर एग्जांपल इफ द आंसर इज 3.123, जो भी आंसर होगा उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स आने चाहिए. कंप्लेक्स कैलकुलेशंस में एग्जैक्ट नंबर को छोड़ के नंबर्स आपने देखने हैं जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. उस नंबर के अकॉर्डिंगली आपने आंसर को रिपोर्ट करना है और उस नंबर के अकॉर्डिंगली आपने आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं. एक बार फिर से हम रिकलेक्ट करेंगे रूल्स फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इसके लिए पहले मैंने कहा कि जिन नंबर्स को आप एड अप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल
4.22 आंसर देना था आपने, लेकिन इनमें रूल कहता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला रूल कहता है कि जिन नंबर्स को आप एड अप कर रहे हो उन नंबर्स को देखना है आपने, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स देखने हैं जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे इसमें 2.12 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. इन केस ऑफ 2.1 वी हैव 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. तो आंसर में भी एक ही डिजिट आना चाहिए आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. दिस इज द रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ. सो आंसर इन दिस केस शुड बी 4.2. सेकेंड वॉज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, और इसके लिए मैंने बताया सपोज आंसर मल्टीप्लाई करने पे भी यही आ रहा है, तो आपने उन नंबर्स को देखना है जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दोनों में से किसके हैं. इसमें वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें वी हैव जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए. सो आंसर विल also be in this case 4.2. Next was for complex calculations. और complex calculations में मैंने बताया कि आपने exact number को छोड़ के जो भी least precise number है उसके according आंसर करना है. जैसे we have 2.1 into 2 plus 3.123 divided by 4.12 into 3.123, और सपोज हाइपोथेटिकली द आंसर इज 2.123. तो आपने एग्जैक्ट नंबर को छोड़ना है, जैसे 2 इज द एग्जैक्ट नंबर, इसको छोड़ के आपने देखना है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन सारों में, बाकियों में किसमें है. 2.1 में ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट होने चाहिए. तो आंसर इन दिस केस विल बी ओनली 2.1. नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ द नंबर. फॉर एग्जाम्पल इस नंबर को आपने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करना है. तो आपने क्या करना होता है, जहां तक राउंड ऑफ करना है उससे अगला डिजिट देखना होता है. अगर अगले वाला डिजिट 5 से ऊपर है तो एक ऐड करके आंसर लिखना है. जैसे इसको आपने यहां तक अगर राउंड ऑफ करना होता 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आंसर वुड हैव बीन 2.124. एक ऐड करना था आपने और आंसर लिखना है. अगर अगले वाला डिजिट इज लेस देन 5, सपोज ये 4 होता, तो आंसर को आपने वैसे टेन करना है. दैट इज व्हाट इट इज. करना आपने ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना. आंसर विल ओनली बी 2.123. अगर अगले वाला डिजिट 5 है, जहां तक आपने राउंडिंग ऑफ करनी है उससे अगले वाला डिजिट अगर 5 है, तो पिछले वाले डिजिट को देखना है. अगर तो वो ऑड है तब तो आपने एक एड अप करना है. जैसे यहां पे 5 से पिछले वाला जहां तक राउंडिंग ऑफ करनी है वो ऑड है, तो इसमें आपने आंसर लिखेंगे 2.124. Had it been even, जैसे यहां पे होता 2.125, तो आपने इवन होता तो कुछ नहीं करना था, वैसे के वैसा आंसर रिटेन कर लेना था. तो आंसर वुड हैव बीन 2.122 ओनली. तो राउंडिंग ऑफ के फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो आपको सभी को पता है कि अगर अगले वाला डिजिट जहां तक राउंडिंग ऑफ करनी है अगर 5 से ऊपर है तो आपने एक ऐड करना होता है. जैसे यहां पे 2.1236 है, तो नेक्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो आप ऐड अप कर दोगे एक और इसमें आंसर आ जाएगा 2.124. इफ द नेक्स्ट डिजिट इज लेस देन 5, तब आप कुछ नहीं करोगे, आंसर वैसे ही रिटेन करोगे जहां तक राउंड ऑफ करना है डेसिमल प्लेसेस तक, वैसे ही लिख दोगे इसको 2.123. नेक्स्ट इज अगर नेक्स्ट डिजिट इज 5, तो आपने पिछला डिजिट देखना है कि अगर वो ऑड है तब तो आपने एक ऐड करके आंसर लिखना है. जैसे ये होता 2.1235, यहां तक राउंडिंग ऑफ करनी होती तो आंसर आपने लिखना था 2.124 बिकॉज 3 इज ऑड. अगर यहां पे आपने 2.1225 इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करनी है, तो बिकॉज दिस इज 5 आपने पिछले वाला देखना है
ये इवन है तो आपने कुछ नहीं करना, आंसर वैसे ही लिखना है 2.122. So this was about significant figures. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इनमें सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और ये लॉ कहता है कि जब भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होती है तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. कि जब भी कोई रिएक्शन होगा, जैसे A प्लस बी गिविंग यू C प्लस डी, तो टोटल मास ऑफ A एंड B शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ C एंड D. But nowadays, after nuclear chemistry, nuclear reactions have been discovered. तो ये लॉ वायलेट होता है because we know that जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. वो एनर्जी आती कहां से है? एक्चुअल में वो एनर्जी आती है बिकॉज देयर इज मास डिफेक्ट दैट टेक्स प्लेस. बिकॉज इन केस ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जब होता है तो टोटल मास of the products is less than the total mass of the reactants in case of nuclear reactions. वो जो mass defect है, जो loss mass में हो रहा है, वो appear होता है in the form of energy according to the Einstein equation. जितना mass defect होगा, जितना loss होगा mass में, that will appear in the form of energy according to Einstein equation. तो इसलिए इसको modify किया गया है law of conservation of mass को कि total mass and the energy of the reactants should be equal to the energy and the total mass of the products. This has been modified law of conservation of mass due to nuclear reactions, that total mass and the energy of the reactant should be equal to total mass and the energy evolved towards the product side. Next law is law of constant composition. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है ये कहता है कि जो भी प्योर कंपाउंड होगा, इसको एग्जांपल से आई विल एक्सप्लेन टू यू दैट जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर कहीं से भी लिया जाए, चाहे टैप वाटर है चाहे लेक वाटर है, दैट विल ऑलवेज बी H2O. Water will always be, it will always be made up of two elements, hydrogen and oxygen. Molecular formula will always be H2O. and जो मास होगा इनका, उनका जो रेशियो होगा, जैसे इस केस में H2O में 2:16, that is 1:8 is the ratio by weight in which hydrogen and oxygen they are combining with each other. So ये लॉ कहता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन सेज कि जब भी कोई प्योर केमिकल कंपाउंड होगा, वो केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो बाय वेट. जैसे CO2 है, C का मास इज 12 एंड दो ऑक्सीजन हैं, इट विल बी 32. 12:32 or 3:8 is the ratio by weight in which carbon and oxygen they combine with each other. कार्बन डाइऑक्साइड चाहे कहीं से भी ली जाए, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके ये निकाली जा रही है, चाहे ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप एटमॉस्फेयर से, CO2 जो है that will always be made up of, जो कार्बन डाइऑक्साइड है that will always be made up of
carbon and oxygen combined together in the ratio of 3:8 by weight. This is law of constant composition. लेकिन जब से आइसोटोप्स डिस्कवर हुए हैं उसके बाद से ये लॉ भी वायलेट हो रहा है. What are isotopes? First of all, isotopes की definition. Isotopes are atoms of same element, combined atoms of same element. For example, we have 3 isotopes of hydrogen, 1H1, 1H2 and 1H3. Isotopes are the atoms of same element which have same atomic numbers but different mass numbers. This is protium, this is deuterium, this is tritium. Similarly, carbon के भी 2 isotopes हैं, C12 and C14. तो एक कार्बन डाइऑक्साइड आप मानते हैं C12 वाली और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड C14 वाली. दिस इज CO2 ओनली. ये जो ब्रैकेट्स में लिखा है मैंने, दीज आर दी मास नंबर्स ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स C12 एंड C14. इसमें अगर देखें रेशियो बाय वेट इस कार्बन डाइऑक्साइड में इट विल बी 12:32, 3:8 वाला, एंड इन दिस केस इट विल बी 14:32. तो रेशियो बाय वेट जो आ रहा है दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में, दैट इज डिफरेंट. सो आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ऐसे केसेस में वायलेट होता है कि इन दीज केसेस इट विल नॉट बी कि ऑलवेज कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो बाय वेट विल बी इक्वल टू 12:32. C14 वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी उसमें इट विल बी 14:32. सो 2 लॉज की अभी तक हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आगे भी है, लेकिन पहले 2 को रिकलेक्ट करें. फर्स्ट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस जब होती है तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. और इसमें वायलेशन बताई है जब न्यूक्लियर रिएक्शंस है उनमें जो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स होता है दैट इज लेस देन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स. और जो मास डिफेक्ट आ रहा है, जो लॉस हो रहा है मास में, दैट इज अपीयरिंग एज द एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. और इसका मैंने एग्जांपल लिया सबसे पहले समझाने के लिए कि वाटर कहीं से भी लिया जाए, इट विल ऑलवेज बी मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंबाइंड टुगेदर इन द रेशियो 2:8 weight, that is 1:8 by weight. सिमिलरली पहले CO2 का एक्सप्लेन किया विदाउट कंसिडरिंग द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. इस केस में कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो बाय वेट आ रहा है दैट इज 12:32, दैट इज 3:8. बट दिस आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, ये वायलेशन है इस केस में लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में, दैट कार्बन 12 वाला कंसिडर किया जाए आइसोटोप तो उस केस में कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो बाय वेट होगा दैट विल बी 12:32. और इन केस ऑफ C14 वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसमें द रेशियो बाय वेट विल बी इक्वल टू 14:32. नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. Third law is law of multiple proportions. कार्बन एंड ऑक्सीजन ये कंबाइन होके 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं. एक है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सेकेंड इज CO2. और इसमें रेशियो देखें हम बाय वेट इन दोनों का, कार्बन ऑक्सीजन का वेट देखें. CO में कार्बन इज 12 grams, दैट इज कंबाइनिंग विद 16 grams ऑफ ऑक्सीजन. इन केस ऑफ CO2 कार्बन इज 12 grams एंड ऑक्सीजन इज 32. ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेज कि अगर 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके एक से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बना रहे हो, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन बनाते हैं CO and CO2, तो और उस केस में
एक एलिमेंट के वेट को फिक्स कर दिया जाए, जैसे यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में ऑलरेडी फिक्स्ड है कार्बन का वेट 12 ग्राम्स, और इस फिक्स्ड वेट के साथ जितना दूसरा एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, जैसे कार्बन 12, इसमें सीओ में 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, और इसमें 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन के साथ 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है। फिक्स्ड वेट ऑफ वन एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट जो कंबाइन हो रहे हैं उनका अगर रेशियो लिया जाए, जैसे इसमें 16:32, 1:2, और दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन होके एक से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बना रहे हो, और उन कंपाउंड्स में, केमिकल कंपाउंड्स में आप एक एलिमेंट के वेट को फिक्स कर दो, जैसे यहां पे ऑलरेडी फिक्स्ड है 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, और दूसरे एलिमेंट्स का जो फिक्स्ड वेट ऑफ इस एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं उनका आपस में रेशियो लो, तो दैट शुड बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसका एक और एग्जांपल है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अगर कंसीडर करें, N2O, NO, N2O3, N2O4 and N2O5। N2O में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का वेट्स देखते हैं। नाइट्रोजन इज 28 ग्राम्स, ऑक्सीजन इज 16 ग्राम्स। NO में नाइट्रोजन इज 14 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन इज 16 ग्राम्स। N2O3 में नाइट्रोजन इज, दो नाइट्रोजन हैं, तो इट विल बी 28 grams and oxygen will be 48 grams. In case of N2O4, 28 and oxygen would be 64, and N2O5 में nitrogen is 28 and oxygen is 80। एक एलिमेंट को हमने फिक्स करना है, तो सबसे अच्छा फिक्स करने का मेथड मेरे ख्याल से इसमें यह होगा कि अगर हम 14 को भी 28 बना दें, बिकॉज ऑलरेडी बाकी वाले फिक्स्ड है 28, तो एक को चेंज करना अच्छा रहेगा। सो 14 को इस केस में, NO के केस में 28 बना दें, 14 ग्राम्स के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, तो 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ इसमें 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होनी चाहिए। तो वी हैव फिक्स्ड द नाइट्रोजन 28 ग्राम्स, और इस फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन के साथ कितनी ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है उसका रेशियो लें अगर, तो दिस विल बी 16:32 48:64 80। So this will be 1:2:3:4:5, और यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है, इस केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। तो एक बार लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फिर से रिकलेक्ट करेंगे हम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होने पे एक से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बना रहे हो, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके 1 2 3 4 5 केमिकल कंपाउंड्स बना रहे हैं, और इन सारे केमिकल कंपाउंड्स में एक एलिमेंट के वेट को फिक्स कर दिया जाए, जैसे नाइट्रोजन को मैं यहां पे फिक्स कर रहा हूं 28 ग्राम्स, और उस 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ जितनी ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है उसको देखा जाए, तो वो जो ऑक्सीजन है विच इज कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन, उसका जो रेशियो है दैट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो, एंड दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। दिस लॉ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। इस लॉ को डिफाइन करने से पहले इसमें भी मैं एक एग्जांपल लूंगा। इस लॉ में, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में ऑलवेज 3 एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व, और जब भी आपको AIEEE में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 3 एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व और पूछा जाए कौन सा लॉ है, तो दैट विल ऑलवेज बी
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन ये मिलके CH4 बना सकते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये मिलके H2O बना सकते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन ये मिलके CO2 बना सकते हैं। तो CH4 के केस में कार्बन इज 12 grams and hydrogen is 4 grams. In case of H2O, 2 grams of hydrogen is combining with 6 grams of oxygen. इसमें हमने एक एलिमेंट को फिक्स करना होता है इन केस ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन को फिक्स कर दूं, इस साइड तो CH4 में 4 grams of hydrogen is combining with 12 grams of carbon, उस साइड भी अगर 4 grams हाइड्रोजन करना हो। अब इसमें देखिए H2O के केस में 2 grams of hydrogen is combining with 16 grams of oxygen, so therefore 4 gram of hydrogen will combine with 32 grams of oxygen. फिक्स्ड वेट ऑफ वन एलिमेंट के साथ जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं उनके वेट्स निकाल लिए मैंने। जैसे 4 grams of हाइड्रोजन के साथ कार्बन 12 ग्राम कंबाइन हो रही है, ऑक्सीजन 32 grams कंबाइन हो रही है, और इनका रेशियो लिया जाए अगर 12:32 कार्बन एंड ऑक्सीजन का, कार्बन एंड ऑक्सीजन जो कि फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, उनका अगर रेशियो लिया जाए तो वो है 12/32 और 12:32। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि इसी रेशियो में या इसके सिंपल मल्टीपल्स में कार्बन एंड ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन होना चाहिए जब ये कोई कंपाउंड बनाएंगे। जैसे CO2 में दिस इज 12 grams एंड ऑक्सीजन इज 32 grams, तो सेम रेशियो में ये कार्बन एंड ऑक्सीजन भी कंबाइन हो रहे हैं आपस में टू फॉर्म CO2। तो यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस कि एक एलिमेंट को आपने फिक्स कर देना है। फिक्स करने का मतलब है उसके वेट को आपने फिक्स कर देना है। जैसे इस केस में CH4 12 grams of carbon is combining with 4 grams of hydrogen. In case of H2O, 2 grams of hydrogen is combining with 16 grams of oxygen. फिक्स करने के लिए मैं 4 grams of hydrogen को फिक्स कर रहा हूं। यहां पे 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 grams of carbon के साथ कंबाइन हो रही है, वहां पे भी 4 करने के लिए मैंने डबल कर दिया, 2 grams of hydrogen 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 32 grams ऑफ ऑक्सीजन। अब इनका रेशियो ले रहा हूं मैं 12:32 आ रहा है, और ये किसका रेशियो लिया, जो एलिमेंट्स हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन जो कि फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन के साथ जितने जितने कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं उनका जो रेशियो लिया, उसी रेशियो में कार्बन एंड ऑक्सीजन शुड कंबाइन विद ईच अदर, उसी रेशियो में या फिर उसके सिंपल मल्टीपल्स में दे शुड कंबाइन विद ईच अदर। दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। और ये देख रहे हैं हम कि CO2 में भी कार्बन इज 12 grams एंड ऑक्सीजन इज 32 grams, तो रेशियो ये 12:32, दिस इज 12:32। सो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इसमें फॉलो हो रहा है। So this was law of reciprocal proportions. Next law is Gay-Lussac's law of combining volumes. Gay-Lussac's law of combining volumes. ये लॉ कहता है कि जब भी गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं तो उनका जो रेशियो आता है वॉल्यूम्स का, फॉर एग्जांपल H2 गैस जो है वो कंबाइन हो रही है Cl2 गैस के साथ टू फॉर्म ट्वाइस HCl गैस। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम सेज कि जब भी गैसेस कंबाइन होंगी और उनका जो वॉल्यूम्स का रेशियो लिया जाए आपस में, दैट शुड बी सिंपल होल नंबर रेशियो। और अगर कोई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो भी गैसियस हैं तो उनका जो रेशियो आना चाहिए विद द रिएक्टेंट्स, दैट शुड आल्सो बी सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे यहां पे H2 और Cl2, अगर इसका 10 मिलीलीटर कंबाइन हो रहा है, इसका भी 10 मिलीलीटर कंबाइन होगा, या 1 मिलीलीटर ऑफ दिस या 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 टू फॉर्म
2 volumes of HCl, it will be कि 1.1 volume of hydrogen combines with 1.3 volumes of chlorine to form 2.5 volumes of HCl. It will never be like this. So it will always be simple whole number ratio. जो volumes का ratio आना चाहिए gaseous reactants का और gaseous products का, that should be simple whole number ratio. This is Gay-Lussac's law of combining volumes. Next is we have to do Dalton's atomic theory. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के सबसे पहले पोस्टुलेट्स जो मेन पॉइंट्स हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, फर्स्ट पॉइंट है इसका, डाल्टन ने कहा था कि एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर. दैट मींस एटम से नीचे मैटर को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता. एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर. सेकेंड उसने कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स. नेक्स्ट उसने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स are different in all the respects. फोर्थ पॉइंट उसका था कि एटम्स जब भी आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द कंपाउंड्स, दे ऑलवेज डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो. दे ऑलवेज डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो. नेक्स्ट पॉइंट था एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल. It cannot be destroyed. That means atoms के कोई further sub atomic particles नहीं होते. These were Dalton's main points of atomic theory. First is atom is the ultimate particle of the matter. Second is atoms of same element are similar in all the respects. Third point, atoms of different elements are different in all the respects. सिंपल होल नंबर रेशियो में एटम्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज एटम इज इंडिस्ट्रक्टिबल. लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आने के बाद दीज ऑल पॉइंट्स आर रॉन्ग बिकॉज एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर. वी नो दैट एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा. देयरफॉर एटम इज नॉट द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर. ये पॉइंट भी रॉन्ग प्रूव हो चुका है जब से आइसोटोप्स डिस्कवर हुए हैं. जैसे 1H1, 1H2, 1H3, these are isotopes of hydrogen having same atomic numbers but different mass numbers. ये सारे के सारे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैं लेकिन इनके मास नंबर्स तो डिफरेंट है. So second point कि atoms of same elements are similar in all the respects, ये गलत हो रहा है यहाँ पे. These are the atoms of same element but their mass numbers are different. Third point is also wrong कि atoms of different elements are different in all the respects. ये गलत प्रूव हुआ है after the discovery of isobars. और आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स. फॉर एग्जांपल these are the isobars. ये पोटाशियम एंड दिस इज कैल्शियम. These have same mass numbers but different atomic numbers. तो इसने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल द रिस्पेक्ट्स. लेकिन ये आइसोबार्स देखें हम, पोटाशियम और कैल्शियम वाला, दे आर सिमिलर एज फार एज देयर मास नंबर्स आर कंसर्न. दे आर नॉट डिफरेंट इन ऑल द रिस्पेक्ट्स, देयर मास नंबर्स आर सेम. ये पॉइंट भी गलत है. एटम्स ऑफ
whenever atoms combine, next point is whenever atoms combine to form the compound, they always do so in simple whole number ratio. ये point भी wrong है because सुक्रोज का एग्जांपल है C12H22O11, इसमें 12:22:11, this is not a simple whole number ratio. So this point is also wrong. Next, atom is indestructible. Nuclear chemistry से हमें पता है atom can be destroyed. Fission reactions होते हैं, fusion reactions होते हैं, तो atom is not indestructible. इसके subatomic particles होते हैं. So this was Dalton's atomic theory. Next is very important law, Avogadro's law or Avogadro's hypothesis. Next is Avogadro's law or Avogadro's hypothesis. He said कि equal number of equal volumes of all the gases, for example hydrogen and chlorine, अगर ये दो gases हैं और इनकी equal volumes ली जाए दोनों की और same conditions of temperature and pressure ली जाए, then they should have similar number of molecules. Next, it can also be generalized, Avogadro's hypothesis, कि 22.4 liters 22.4 liters of any gas at NTP condition, normal temperature and pressure conditions, 273 Kelvin and 1 atmosphere pressure is the NTP condition, or 22.4 liters of any gas at NTP conditions should be equal to 1 mole. That means how many molecules should be present? 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. एक बार फिर रिकलेक्ट करें इसको. एवोगैड्रो ने कहा कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल, अगर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये दो गैसेस ली जाए, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो इनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए अगर इनकी वॉल्यूम्स सेम है. Next, it can also be generalized that 22.4 liter gas TP conditions, normal temperature and pressure conditions, that is 273 Kelvin and 1 atmosphere pressure should be equal to 1 mole, and 1 mole जो हमने अभी कवर अप करना है वैसे 1 mole होता है 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. Next, इसकी कुछ first is first application is that we can calculate, we can come to know about the atomicity of an elementary gas. First of all, atomicity होता क्या है? Elementary gases क्या होती हैं? Elementary gases such as O2, which are made up of same type of elements, O2, N2, O3, और एक मॉलिक्यूल में O2 में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं, जैसे दो एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी जो होगी दैट विल बी 2. N2 की एटॉमिसिटी विल बी 2. O3 की एटॉमिसिटी इज 3. तो वी कैन कम टू नो अबाउट द एटॉमिसिटी बाय अप्लाइंग द एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. जैसे मान लीजिए एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन combines with oxygen to form water vapors. और ये भी हमें पता है कि 2 volumes of hydrogen they combine with of oxygen to form 2 volumes of water vapors. अब यहां पे अगर एवोगैड्रो हाइपोथेसिस अप्लाई करें कि 1 वॉल्यूम को अगर मैं लेता हूं n मॉलिक्यूल्स, तो 2 वॉल्यूम्स शुड बी इक्वल टू 2n मॉलिक्यूल्स and 2 volumes of water vapor should be equal to
to n molecules of water vapors. That means 2n molecules of hydrogen combine with n molecules of oxygen to form 2n molecules of water vapors. This can also be written as 2 molecules of hydrogen, they combine with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water vapors. This can also be written as that 1 molecule of hydrogen combines with half molecule of oxygen to form 1 molecule of water vapors. अब हमें ये पता है कि 1 molecule of water vapors इसका जो मास है that is 18 EMU और इसका जो 1 molecule of hydrogen है this is 2 EMU. That means half molecule of oxygen, this half molecule of oxygen should be equal to 18 minus 2 that is 16 EMU. और जब एटॉमिसिटी निकाली है तो उसमें यह भी हमें मालूम है कि 16 EMU is the atomic mass of oxygen atom. This 16 EMU, this is the atomic mass of oxygen atom. Therefore इसका मीनिंग ये हुआ कि 16 EMU is equal to 1 atom of oxygen, which is equal to half molecule of oxygen. That means half molecule of oxygen में एक एटम है ऑक्सीजन का, half molecule of oxygen में there is only 1 atom of oxygen. Therefore एक molecule में कितने होने चाहिए? 2 atoms. half molecule of oxygen में अगर एक atom है तो एक molecule of oxygen में there should be 2 atoms. Therefore atomicity of oxygen is 2. So this is the way in which atomicity of the elements, atomicity of the elementary gases, they were calculated by using Avogadro's hypothesis. एक बार फिर recollect करते हैं, hydrogen and oxygen they combine to form water vapors. हाइड्रोजन की 2 वॉल्यूम्स, दिस वी नो ऑलरेडी दैट हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम्स कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर्स. एंड यहां पे अप्लाई कर रहे हैं हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस कि अगर 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू n मॉलिक्यूल्स, 2 वॉल्यूम्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन शुड बी इक्वल टू 2n मॉलिक्यूल्स एंड 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर दे शुड बी इक्वल टू 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर्स. If this is considered as 1 molecule of oxygen, this will be 2 molecules of hydrogen and these will be 2 molecules of water vapors, and this will be half. If this is taken as 1, this is 1, this will be half, this will be 1. And water vapors, we know that mass, molecular mass of water vapors is 18 EMU and hydrogen's mass is 2 EMU. Therefore half molecule of O2 should be equal to 18 minus 2 that is equal to 16 EMU. So half molecule of oxygen is equal to 16 EMU and we know that 16 EMU ये जो होता है this is the atomic mass of 1 atom of oxygen. So this half molecule of oxygen they are equal to 1 atom of oxygen. Therefore 1 molecule of oxygen, 1 molecule of oxygen should contain 2 atoms. Therefore atomicity of oxygen is 2. Second application of Avogadro's hypothesis is that we can derive the formula twice vapor density of any gas is equal to its molecular mass. और वैसे भी ये formula बहुत important है. Twice vapor density, twice Vd is equal to molecular mass of the gas. और ये डिराइव कैसे हुआ है? ये डिराइव हुआ है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस को यूज करके. वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. जिस गैस का वेपर डेंसिटी निकालना है वो ऊपर मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स of H2. Actually it is mass of V milliliter
milliliters of gas, and second point which I have written, V milliliters of gas divided by mass of V milliliters H2, this is the vapor density. और इसके बाद अगर हम अप्लाई करें एवोगैड्रोस लॉ कि अगर V milliliter of gas contains N molecules, तो V milliliter of hydrogen they should also contain N molecules. So this will be equal to mass of V milliliter. यहाँ पे एवोगैड्रोस लॉ लगाएंगे. This V milliliter contains N molecules, तो mass of N molecules of gas divided by mass of N molecules of H2. इसको हम लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी N और N की जगह हम ले सकते हैं 1 molecule of gas and in this case 1 molecule of hydrogen. So this will be mass of 1 molecule of gas divided by mass of 1 molecule of hydrogen. We know that mass of 1 molecule of hydrogen is 2 and mass of 1 molecule of the gas is the molecular mass of the gas, जिसका आपने ये relation निकालना है. So molecular mass will be equal to twice vapor density, and this is the law which has been derived by using Avogadro's hypothesis. एक बार फिर से recollect करें. Vapor density of any gas is equal to mass of V milliliter of gas divided by mass of V milliliter of hydrogen. And यहाँ पे Avogadro law लगा रहे हैं हम कि अगर V milliliter of the gas contains N molecules, तो वो V milliliter of hydrogen should also contain N molecules. और this is ये consider किया जा रहा है कि दोनों जो volumes calculate की गई हैं, they are at the same temperature and pressure. Similar conditions पे दोनों gases को लिया गया है, इस gas को भी और hydrogen को भी. Next is कि अगर N और N वाला ratio 1:1 कर दें तो mass of 1 molecule of gas divided by mass of 1 molecule of hydrogen. And we know that mass of 1 molecule of H2 is 2. So vapor density, twice vapor density will be molecular mass of the gas because mass of 1 molecule of gas is the molecular mass of that gas. So this was Avogadro's law, Avogadro's hypothesis and its applications.